Friends, now today we will start with human circulatory system. ठीक है, we have started about transportation. Transportation is a process in which substances are transferred from one part of the body to another part. We have completed with transportation in plants and we have started with transportation in animals. Now, in animals there is, or in human beings there is circulatory system which helps in the transport of different substances from one part of the body to another part. There is a special system, that is circulatory system, to transfer different substances in the human body. Circulatory system जो है वो बहुत ही important topic है, ठीक है. In 11th also, if you are taking bio, then the circulatory system is the most important topic for NEET exam. So, just like respiratory system, digestive system, third system in our body is circulatory system. Now, human circulatory system जो है, it consists of या organs of human circulatory system. Organs of human circulatory system are heart, then blood vessels which consists of arteries, veins and capillaries, and the most important blood. ब्लड के फंक्शंस अपन ने देख लिए. ये पूरी चीजें जो है इट इंक्लूड्स द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड and the blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. The function of heart is to pump blood. The function of heart is to pump blood in our body. This blood is carried to each and every cell of our body by these vessels, and blood transports various gases, nutrients, ठीक है, waste materials, hormones to different parts of our body. ये मैंने तुमको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. Now we will move forward and see the internal structure of human heart. The internal structure of human heart. Heart जो है, it is present in between the two lungs. Heart is present in between the two lungs in our chest cavity. It is also protected by the rib cage. Now the size of heart जो है, it is just same like our clenched fist. Our clenched fist. हर लिविंग बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग में इतना रहता है हार्ट का साइज. जितनी उसकी बंद मुट्ठी का साइज है ये, उतना उसका साइज रहता है. वो ट्रायंगुलर इन शेप है. हार्ट जो है वो कैसा है शेप में? ट्रायंगुलर इन शेप. Roughly it is triangular in shape. Then the weight of heart ranges from 300 gram to 500 gram in adult humans. In adult human, the weight of heart is 300 gram to 500 grams. It is triangular in shape और साइज जो है उसकी वो उतनी है बंद मुट्ठी जितनी. ठीक है. Now सेंटर में है ये दो लंग्स के बीच में. एक्सटर्नली हार्ट जो है it is protected. Externally heart is protected by a double membrane called as pericardium. Externally heart is protected by a double membrane called as pericardium. जैसे lungs भी protected थी by double membrane called as pleura, वैसे ही हार्ट के ऊपर में भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन है. दो मेम्ब्रेन्स है और जो हार्ट के पास में है उसको बोलते हैं विसेरल पेरिकार्डियम. ठीक है. एंड द आउटर वन, इनर मतलब नियर टू हार्ट, और आउटर जो मेम्ब्रेन है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम. दो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन, विसेरल और पैराइटल मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है. क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट. इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम शॉक एब्सॉर्बिंग. ठीक है. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये प्रोटेक्शन दे रही है हार्ट को. इट एब्सॉर्ब्स द शॉक्स एंड इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट. ठीक है. हार्ट इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स.
कार्डियक मसल्स से बना हुआ है हार्ट और these works continuously right from the birth up to the death. कार्डियक मसल्स कंटिन्यूअसली वर्क करती है right from the birth up to the death, ताकि हार्ट जो है वो पंप कर सके ब्लड इन अवर बॉडी. ठीक है. नाउ इंटरनली हार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स. इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. 4 चेम्बर्स है हार्ट में. ठीक है. इट इज अ डबल स्टोरी बिल्डिंग. इट इज अ डबल स्टोरी बिल्डिंग. अपर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर्स एंड लोअर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर्स. ठीक है. हार्ट जो है इसमें 4 चेम्बर्स है, ऊपर में 2 चेम्बर्स है और नीचे में 2 चेम्बर्स है. ठीक है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ठीक है. ये लेफ्ट साइड है हार्ट का और ये जो है वो राइट साइड है. 2 चेम्बर्स ऊपर में है और 2 चेम्बर्स नीचे में है. अंदर में हार्ट के इंटरनली वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है और बीच में से भी डिवाइडेड है हार्ट जो है लेफ्ट साइड से और राइट साइड में. द अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स. द अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स. ठीक है. द लोअर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. The lower 2 chambers of the heart are called as ventricles. ठीक है. ये ऑरिकल्स को एट्रिया भी बोलते हैं. कुछ बुक्स में एट्रिया दिया है. ठीक है. ऊपर के जो चेम्बर्स है उनको ऑरिकल्स बोलते हैं. नीचे के जो चेम्बर्स है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स जो है these are receiving chambers. ऑरिकल्स आर receiving chambers. ऑरिकल्स आर रिसीविंग चेम्बर्स और वेंट्रिकल्स जो है दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स. ऑरिकल्स जो है दीज आर थिन वॉल्ड. वॉल कैसी है ऑरिकल्स की? थिन. वेंट्रिकल्स जो है दीज आर थिक वॉल्ड. ऑरिकल्स जो है वो थिन वॉल्ड है, वेंट्रिकल्स जो है वो थिक वॉल्ड है. इनकी वॉल्स जो है वो बहुत थिक है क्योंकि these are distributing chambers. Now the right side of the heart is separated. जो राइट ये जो पार्ट है ये लेफ्ट साइड है. ये जो ऑरिकल है इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल. उसके नीचे ही बराबर रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट साइड में ये ऊपर का जो चेम्बर है ये है राइट ऑरिकल और उसी के नीचे बराबर है लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब ये दो ऑरिकल्स सेपरेटेड है बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ठीक है. दोनों ऑरिकल्स लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला सेपरेटेड है बाय अ पार्टीशन. दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ठीक है. वैसे ही वेंट्रिकल्स दोनों ये लेफ्ट साइड का सॉरी और ये राइट साइड का वेंट्रिकल जो है दिस इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. नाउ ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट ऑरिकल ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय वॉल्व. यहाँ पे वॉल्व है एक. ठीक है. दैट इज V1 और it is called as bicuspid wall. ये जो V1 है इसका नाम क्या है? bicuspid valve. फंक्शन ऑफ वॉल्व भी मैंने पढ़ाई तुमको. वॉल्व्स जो है they ensures that blood does not flows back. ठीक है. prevents the back flow of blood. है ना. वॉल्व्स क्या कर रहे हैं? they prevents the back flow of blood. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है. ये वॉल्व V2 है. ये वॉल्व क्या है? V2 और इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व. इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. मस्कुलर पार्टीशन है यहाँ पे. यहाँ पे 2 फ्लैप है ऐसे. यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 मस्कुलर फ्लैप है, इसलिए इसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व. यहाँ पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है
वहां पे 3 मस्कुलर फ्लैप्स है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। नाउ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स इज थिक, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स है इसलिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले तुमको समझना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से हार्ट में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स हार्ट में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स इनटू हार्ट by pulmonary vein, by pulmonary vein। ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जैसे अपन इनहेल करेंगे, जो एल्वियोला में एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा है ना, ब्लड में ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो लेके आएंगे। ये जो रेड कलर की है ये पल्मोनरी वेन्स है, क्या ये पल्मोनरी वेन्स। Pulmonary veins brings oxygenated blood into the left auricle. First, oxygenated blood comes into the left auricle by pulmonary veins. ठीक है। लेफ्ट लंग भी देगा और राइट लंग भी देगा। यहाँ पे भी तो है, ये पल्मोनरी वेन्स है जो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ला लेंगे सबसे पहले। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही है, दिस ग्रीन कलर्ड आर्टरी। ठीक है। ये ग्रीन कलर्ड आर्टरी जो है मेन आर्टरी, इट इज कॉल्ड एज एओर्टा, इट इज कॉल्ड एज एओर्टा। इट इज अ बिग आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है अपने बॉडी में। कौन सी है? एओर्टा। और ये क्या कर रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रही है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी, फिर यहाँ पे ऊपर के बॉडी में अपने और नीचे के बॉडी में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो है एओर्टा में यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है। ठीक है। दीज आर सेमिलुलर वॉल्व्स। ये जो वॉल्व है V3 बोलेंगे इसको अपन, और वैसे इसके नाम है सेमी लूनर वॉल्स। इसका नाम क्या है? सेमी लूनर वॉल्व्स। ये वॉल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एओर्टा में एंटर हुआ। ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वॉल्व V1 जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये मसल फाइबर्स है, ये जो है ब्लू कलर की ये मसल फाइबर्स है जो कि कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे बेस में वेंट्रिकल में एक पैपिलरी मसल रहती है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द नेम्स बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड दिस नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। एक मसल है यहाँ पे बेस में पैपिलरी मसल, उससे बहुत सारे हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं और ये वॉल्व को बंद कर देंगे। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, वॉल्व V1 बंद हो जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा, तो ये वॉल्व V3 बंद हो जाएगा। ये वॉल्व V3 जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डबल कभी ऑरिकल में नहीं जाएगा, एक बार यहाँ आ गया तो ऑरिकल में नहीं जाएगा, ये बंद हो जाएगा। फिर एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चले गया अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो यहाँ पे वॉल्व V3 बंद हो जाएगा, बैक फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है। Once the oxygenated blood enter into aorta, it does not enter into left ventricle. अब ये aorta से पूरे उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस रहेंगी, आर्टरीज। पूरी आर्टरीज जो है वो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, अपने पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। आर्टरीज का फंक्शन क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी इनटू कैपिलरीज। ये आर्टरीज क्या में डिवाइड होंगी? इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज मैंने बताई तुमको, दीज आर थिन वॉल्ड, एकदम बहुत ज्यादा इसकी थिन वॉल रहती। अपने सेल्स के पास में जहाँ पे एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन सेल में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल का जो है वो कैपिलरीज में आ जाएगा। कैपिलरीज जो है यहाँ पे क्या कर रही? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे गैसेस,
ठीक है, O2 एंड CO2 का। ये कैपिलरीज यूनाइट होंगी और वेन्स बनेंगी। कैपिलरीज क्या होंगी? यूनाइट होंगी और वेन्स बनेंगी। वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या कर रही है? कलेक्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कंटेनिंग CO2। The blood containing CO2 is called as deoxygenated blood. So, from upper part of our body, this vein, that is superior vena cava, that is superior vena cava, brings deoxygenated blood into the right auricle, into the right auricle. From lower part of our body, this vein, that is inferior vena cava, that is inferior vena cava, brings deoxygenated blood into the right auricle, into the right auricle। मतलब right auricle का काम है deoxygenated blood को कलेक्ट करना। ठीक है, समझा? नाउ यहाँ पे ब्लड आ गया कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल में, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। अब ये राइट ऑरिकल से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये जो टी शेप की दिख रही है, टी शेप की आर्टरी है ये, और ये आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जा रही है। इधर से राइट पल्मोनरी आर्टरी, इधर से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दोनों लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, यानी ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे अपन एक्सेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऐसा पूरा सर्कुलेट हुआ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे। ठीक है, किससे आया? पल्मोनरी वेन से। फंक्शन ऑफ वेन क्या है? फंक्शन ऑफ वेन है टू कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक वेन है अपने बॉडी में, सिर्फ एक वेन। कौन सी? पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। बाकी पूरी वेन्स का फंक्शन है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स का फंक्शन है टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट वन वेन, that is pulmonary vein, which brings oxygenated blood into the left auricle. Now, from left auricle, oxygenated blood comes into left ventricle. From left ventricle through aorta. This is arc shaped artery. ये arc shape की artery है, बड़ी सबसे artery है, इसका नाम है aorta, जो कि oxygenated blood left ventricle से लेके जा रही है पूरे बॉडी में। लेफ्ट एओर्टा से ब्रांचेस निकल रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे, वहां पे कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा O2 और CO2 का। अब CO2 लेके आएगा कौन? वेन्स। कौन सी वेन? सुपीरियर वेना कावा, अपने अपर पार्ट से लेके आएंगी राइट ऑरिकल में, लोअर पार्ट से लेके आएंगी इंफीरियर वेना कावा। राइट ऑरिकल में दोनों जो है वो क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टी शेप की आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी, उससे लंग्स में चले जाएगा। इस तरह से लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ऐसा नहीं होता, ये दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इधर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इधर, V1 और V2 बंद हो जाएंगे दोनों वॉल्व। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, जैसे ही ये दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, V1 और V2 बंद हुआ, ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से ये बंद हो जाएगा। एक साउंड आएगा, दैट इज लब साउंड, दैट इज लब साउंड। ठीक है, ये बंद हो जाएंगे, एक साउंड आएगा लब। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पे जो सेल्यूलर वॉल्स है दोनों में वो बंद हो जाएंगे। दूसरा साउंड आएगा, दैट इज डब। एक हार्ट बीट अपनी कंप्लीट होगी, एक हार्ट बीट जो है
वो कंप्लीट हो गई, है ना। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट फॉर्म्स वन हार्टबीट, ठीक है। तो अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन, कौन सी ब्लड वेसल, ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और कौन सी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में कि राइट ऑरिकल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ये टी शेप आर्टरी से लंग्स में वापस चले जा रहा है। सो आई थिंक फॉर टुडे you study the detail about this internal structure of heart. Further, if you have any questions, you can ask.